अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FSID न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद फारूक। पढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर। Creative Mind School Teachers Colony Mehboob Nagar. Admission open for academic year 2026 to 27. Classes from pre-nursery to class 7th. Activity-based learning, experienced teachers, overall development, CCTV surveillance, moral values. Special offer for first 50 students. Director Mohammad Abdul Rahim Chand. Please contact 8886666156 or 8074227468. عوامی جلسے عام ہماری آواز میں بلا تفرق سیاسی و مسلحی مسلمانوں سے ہزاروں کی تعداد میں شرکت کی اپیل. کل جماعتی مسلم جوائنٹ ایکشن کمیٹی قائدین کی پریس کانفرنس. کل جماعتی مسلم رائٹس جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے آج محبوب نگر کے محبوبیہ ہال میں ایک صحافتی کانفرنس کا انعقاد عمل میں لایا گیا. اس صحافتی کانفرنس سے خواجہ فیاض الدین انور پاشا سرپرست، محمد حنیف احمد کنوینر، مقصود بن احمد ذاکر ایڈوکیٹ ضلع جنرل سیکریٹری مجلس، محمد محسن خان کو کنوینر نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ MRJAC کے زیر اہتمام 24 مئی بروز اتوار کو منعقد شدنی عوامی جلسے عام ہماری آواز کو کامیاب بنانے مسلمانان متحدہ ضلع محبوب نگر سے اپیل کی. اس موقع پر ان قائدین نے کہا کہ دور حاضر میں جہاں سبھی پسماندہ طبقات اپنے اپنے حقوق کو منوانے کے لیے اپنی سیاسی وابستگی کو بالائے طاق رکھ کر متحد ہو رہے ہیں، لیکن مسلمان اس دور میں سب سے پیچھے ہیں. لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ مسلمان بھی اپنے دیرینہ مطالبات کی یکسوئی اور برسر اقتدار جماعت کی جانب سے سال 2023 میں کیے گئے وعدوں جیسے مائنارٹی ڈکلیریشن وغیرہ پر عمل آوری کے لیے حکومت پر دباؤ بنانے کے لیے متحد ہو جائیں. اسی ضمن میں مسلم رائٹس جوائنٹ ایکشن کمیٹی محبوب نگر کی جانب سے جلسے عام ہماری آواز کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے. اس جلسے کو معروف سیاستدان CM ابراہیم بنگلور، علامہ مولانا ابو طالب رحمانی رکن علامہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کلکتہ، پروفیسر کودنڈا رام MLC، کے سامبا شیوا راؤ MLA کتاگوڑم، جان ویزلی ریاستی سیکریٹری CPIM، پروفیسر اسلام الدین مجاہد جماعت اسلامی ہند، محمد شکیل ایڈوکیٹ صدر ریاستی مسلم لیگ و دیگر مخاطب کریں گے. ان قائدین مسلمانان متحدہ ضلع محبوب نگر بالخصوص محبوب نگر مستقر سے اپیل کی اس جلسے عام کو کامیاب بنانے کے لیے مسلمان امڑتے سیلاب کی طرح اس جلسے عام میں شریک ہو کر اپنے عظیم ملی اتحاد کا ثبوت دیں. کل بتاریخ 24 مئی بروز اتوار محبوب نگر مسلم رائٹس جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے شالیمار گارڈن میں ایک جلسے عام کا انعقاد کیا گیا ہے. اس میں محبوب نگر کے عوام سے اپیل ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس جلسے میں شرکت کر کے اس جلسے کو کامیاب بنائیں اور اتحاد کا ثبوت دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے مسائل ہیں جو حل ہونے جانے کا ہے حکومت کے ذریعے، اس پر دباؤ بنانے کے لیے ہماری حکومت سے اپیل رہے گی انشاءاللہ تعالی. کہ کوئی ہمارا احتجاج نہیں ہے، ہم جو وعدہ حکومت 2023 میں کی تھی ہم اس کو عمل کرنے کے لیے یہ جلسہ منعقد کیے ہیں. لہذا سبھی حضرات سے محبوب نگر کے عوام سے اپیل ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس جلسے میں شرکت کریں. اور بہت سارے لوگ جو متحدہ ضلع سے آنے والے بھی ہیں اور یہاں کے لوگ بھی ہیں، بعد جلسے کے کام کا انتظام بھی کیا گیا ہے. انشاءاللہ العزیز امید کرتے ہیں آپ سب سے آپ زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس جلسے میں شرکت کر کے اس جلسے کو کامیاب بنائیں. جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے ہر اتوار یعنی 24 میں بعد نماز مغرب الماس فنکشن ہال میں شالیمار فنکشن ہال میں ہماری آواز کے نام پر ایک عظیم الشان جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں ملک کے نامور ہمدرد اور دانشمند علی جناب CM ابراہیم صاحب، مرکزی وزیر ابو طالب رحمانی صاحب
मेंबर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कोदंडाराम साहब दूसरे चुनिंदा कायदीन इस जलसे को खिताब करेंगे। मैं आपको बतलाना चाह रहा हूं, जॉइंट एक्शन कमेटी का मकसद इस जलसे को मुनक्किद करने में हुकूमत से टकराव का नहीं, बल्कि हुकूमत को झिंझोड़ने और हमारे मतलबात को पूरा करने के लिए ये जलसे का इनेकाद अमल में आ रहा है। जमहूरियत की लचक और जमहूरियत की फितरत हमेशा ये रही है कि अपने मसाइल को हल करने के लिए आप या तो एहतजाज करें या फिर जलसाम के जरिए अपने मामलात को हुकूमत तक पहुंचाएं और हुकूमत को झिंझोड़ें कि कौम, ये मिल्लत आपके किए हुए वादों को पूरा करने के लिए इस जलसे की शक्ल में आप तक पहुंच रही। जमहूरियत में सरों को तोला नहीं जाता, बल्कि सरों को गिना जाता है। इसीलिए मैं तमाम जितने लोग तक मेरी ये बात जा रही है मीडिया के जरिए, मुत्तहिदा जिले महबूबनगर के लोगों से मैं पुरजोर फिर एक बार गुजारिश कर रहा हूं कि आप यकीनन आपका वक्त कीमती है, लेकिन मैं कहने के मौकूफ में हूं, जहां कौम के मसाइल हो तो आपका वक्त इससे बढ़कर कीमती कहीं और नहीं हो सकता। इसलिए आप लोगों को जो दोख इस जलसे में आना है, न सिर्फ अपनी हाजिरी दलाना है, बल्कि इत्तेहाद का सबूत भी देना है। अगर इस जलसे में ज्यादा तादाद में हम आएंगे तो हुकूमतों को मजबूर होना पड़ेगा। आप देखिए 2.5 साल के बाद भी अगर कोई कौम नाखुश या फिर जिनके साथ सुलूक सही नहीं किया जा रहा है, वो मुसलमान कौम है। आज यकीनन कांग्रेस को मुसलमानों ने इख्तियार दिया, एक उम्मीद से दिया। उम्मीद भी जगाने वाले आप थे। आपने ही अपने जबान से कहा कि हम सब प्लान देंगे, हम मुसलमानों की मैशियत को माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के जरिए अच्छा करेंगे। लेकिन अफसोस 2.5 साल गुजरने के बाद भी जो तवक्कुआत मुसलमान आपकी हुकूमत से रखा था, आज भी वो नाखुश है, जहां था वहीं है। इन हालात में हुकूमत को संजीदा सोचना चाहिए, न सिर्फ सोचना चाहिए बल्कि इस जलसे के साथ ही आपका लाहेमल तय होना चाहिए। आज देखिए माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल्स की बात करते हैं लोग, मैं कहने के मौकूफ में हूं, अगर एससी बीसी हॉस्टल का टैरिफ और माइनॉरिटी रेसिडेंशियल उसका टैरिफ अगर देखेंगे, जो क्वांटिटी, जो साबुन, जो तेल, जो चीज, जो कीमत उनको दे जाती है, वो टाइमरी समय नहीं है। ये दोहरा सुलूक है, सिर्फ कहने के लिए स्कूल्स इस्टेब्लिश हो गए हमारे, लेकिन जब मुकाबला या मवाजना किया जाएगा तो मुसलमानों के पास हर बार इनके साथ इनके सुलूक में कहीं ना कहीं कमी महसूस की जा रही। तो इन हालात में हम मुसलमानों के पास जमहूरियत का दिया हुआ एक ही हथियार है, जो हम मुत्तहिद हों और अपने मसाइल को एक प्लेटफॉर्म के जरिए हुकूमत तक पहुंचाएं। दूसरी और चीज नहीं है। हमारा मकसद और जॉइंट एक्शन कमेटी का मकसद यही है कि मुसलमानों के मसाइल को हल करवाएं। चूंकि हो सकता है हुकूमत संजीदा नहीं है, हो सकता है हुकूमत तक हमारी बात नहीं भी जा रही हो, तो इसके जरिए हम हुकूमत तक एक बात पहुंचा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए हमको यह बतलाना है कि आज मुसलमान मुत्तहिद हो चुका है। अपने मसाइल हल करने के लिए जेएसी के जरिए शालीमार गार्डन में 24 के दिन इंशाल्लाह बाद मगरिब तमाम हमारे पास ऐसे स्कॉलर्स हैं जो
न सिर्फ पार्लियामेंट में बल्कि तमाम जिंदगी के दौरे हयात में अच्छा काम किए हैं, अच्छे मशवरे दिए हैं और हुकूमतों से टकराव के बगैर मुसलमानों के मसाइल को हल करें। हमारा मकसद हुकूमत से टकराव का कभी भी नहीं रहा, आज भी नहीं है। हम सिर्फ हुकूमत को झिझोड़ना चाह रहे हैं। क्या बात है कि समाज में बसने वाले हर जात के लिए आपके पास वक्त है, हर जात के लिए आपके पास एक प्लान है, मुसलमानों के लिए सब प्लान क्यों नहीं? ये चीज हमारा मकसद है। हम इस मकसद को कामयाब होने के लिए आप लोगों की शिरकत इस जलसे में बेहद जरूरी है। लिहाजा फिर एक बार मैं तमाम जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं, मुझसे पुरजोर गुजारिश कर रहा हूं कि जिस तरह इलेक्शंस में हम बोलते हैं मर भी गए तो बाद में देखिए, पहले जाके वोट का हक हासिल करके आए, इस्तेफादा कीजिए। इसी तरीके से इस जलसे में आप अपनी कुछ भी मसरूफियत होंगी वो मसरूफियत को टाल लीजिए, मुलतवी कर लीजिए, लेकिन ये जलसे को अहम समझ के आइए, क्योंकि ये एक जलसा एक जेएससी का, एक मेरा या आपका नहीं है। तमाम मुसलमान रहने बसने वाले मुसलमान जो रियासत तेलंगाना में हैं उनके मसाइल, आपकी हाजिरी तमाम तेलंगाना मुसलमानों की हाजिरी के बराबर है। इसलिए आप लोगों को इस जलसे को न सिर्फ कामयाब बनाना है बल्कि अपनी हाजिरी भी दर्ज करना है और तमाम मसाइल का हल इंशाल्लाह इसके जरिए हम पूरों को, इस्लामुद्दीन मुजाहिद साहब भी एक अच्छे मुकर्रिर हैं, सुनना है लोगों को, न सिर्फ हमको सुनना है बल्कि मैं जीएससी इंशाल्लाह बहुत अच्छे तमाम लोगों को लेके बनाई है। मैं पुरुमीद हूं कि ये चीज जलसे तक ही महदूद नहीं रहेंगी बल्कि इसके बाद फॉलो अप भी होगा, मुसलमानों के लिए काम होंगे। महबूब नगर एक बेस बनाया गया है, महबूब नगर के जरिए हम पूरे तेलंगाना के मुसलमानों के मसाइल हल करेंगे। फिर एक बार मैं अदबन सबसे ख्वाहिश करता हूं कि आप लोगों को सिर्फ हमारे मुसलमान हम भाइयों में मायूसी बहुत हो गई है, वो होने से क्या होता, फला होने से क्या होता, ये छोड़ दीजिए। आप ये सोचनिए मैं हमारी कौम के लिए क्या कर सकता हूं, आपकी कौम आपको क्या दी ये आपको जरूरत नहीं है, आप कौम के लिए क्या दे रहे हैं। What you have contributed to nation is immaterial, what you have contributed that is very important। इस तरीके से ये चर्चिल जो अमेरिका का सदर था उसने कहा था कौम के लिए हम क्या दे रहे हैं, कौम को हमारे लिए क्या दे रही है ये माने नहीं है। इसके मिसबाक हम लोगों का काम सिर्फ उस जलसे में हाजिर होना है, सरों का समंदर बताना है, लोगों को देखना है। महबूब नगर की तमाम शाहराहें शालीमार गार्डन की तरफ बाद मगरिब मुड़ जाएंगी और मुसलमानों के मसाइल के हल के लिए जो जलसा मुनक्किद किया गया है उसकी कामयाब बनाएंगे। ये ख्वाहिश के साथ मैं आपसे मेरी पुरजोर अपील। शाम 6 बजे शालीमार गार्डन में एक अजीम शान जलसा मनाया जा रहा है जिसका मकसद है अमन और भाईचारगी और SIR और माइनॉरिटी डिक्लेरेशन के अमलावारी, ये असल मकसद है। और ये जलसा मुत्तहिदा ज़िले के तमाम लोग इम्पोर्टेंट क़ायदीन, समाजी सियासी क़ायदीन हाजिर होंगे। बिलखुसूस महबूब नगर के शहर के अवाम से, यहाँ के उलमाओं से और यहाँ के दानिशमंद हज़रात से, नौजवानों से और तमाम सियासी समाजी क़ायदीन से भी मैं अपील करता हूँ कि ये जलसे को कामयाब बनाने की पूरी तरीके से मदद करें। और ये जलसा ये आज की हालात के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। हमारी आवाज़ के नाम पे जो जलसा मनाया जा रहा है, एक तमाम तबक़ात, इसमें दलित और आदिवासी, पिछड़े हुए तबक़ात और अक़लियत, तमाम सेकुलर और डेमोक्रेटिक जो फोर्सेस है, ये तमाम लोग मिल के एक अमन और भाईचारगी का माहौल पैदा करना और मुल्क के अंदर और उसी अंदाज से और SIR और हमारे माइनॉरिटी से डिक्लेरेशन के अमलावारी असल मकसद है। माइनॉरिटी डिक्लेरेशन का अमलावारी 4000 करोड़ रुपए देते बोले आज तक 1 रुपया नहीं आया।
और उसके अलावा सब प्लान बनाते 4 करोड़ रुपए 4,000 करोड़ रुपए के इस्तेमाल के लिए सब प्लान देते बोले, आज तक सब प्लान का काम नहीं हुआ। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन को मजबूत बनाते और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से डायरेक्ट और रास्त सब्सिडी लोन देते बोले, आज तक किसी एक को भी एक लोन भी इशू नहीं हुआ। और प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक जो स्कॉलरशिप्स देते बोल के वादा किए थे, वो स्कॉलरशिप भी आज तक कुछ भी अमल आवारी नहीं हुई। उसके साथ साथ जो तलबा है उनकी फ़ीस रियम्बर्समेंट का जो बड़ा मसला है इस वक्त, जो साबिक़ा फ़ीस रियम्बर्समेंट नहीं आने से और यहाँ के जो तलबा और तालिबात को जो फ़ीस रियम्बर्स के लिए मैनेजमेंट पैसे लेके सर्टिफिकेट दे रही, और जो गरीब गुरबा है लाखों रुपए हज़ारों रुपए वो लोग पे नहीं कर सके, उनके सर्टिफिकेट से मैनेजमेंट के पास ही है। आज नए स्टूडेंट्स दाखिला लेने के लिए जो फीस रियम्बर्समेंट नहीं है तो हम पढ़ नहीं सकते बोल के ड्रॉपआउट्स ज़्यादा से ज़्यादा ड्रॉपआउट्स फिर से बढ़ते हुए जा रहे। इस तरीके से वक्फ जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ बोले और क्या है जुडिशल पावर देते बोल के बोले, जुडिशल पावर का भी नहीं हुआ। उसी अंदाज में इमाम और मौज़नों के जो सैलरीज बढ़ाते बोल के बोले 5,000 है सो 10,000 करते, 10,000 है सो 15,000 करते बोले, इस पर भी कोई अमलावरी नहीं हुई। ये 2.5 साल में मुकम्मल तौर पे और यहाँ के तेलंगाना की अक़लियतों पे कोई चीज़ अमलावरी नहीं होने की वजह से, और हम ये जलसे को एक दबाव डाल के एक फ्रेंडली अंदाज में यहाँ के जो अलायंस पार्टीज़, कांग्रेस के अलायंस पार्टीज़ CPI, CPM और TJS कोदंडाराम साहब को लेके एक अलायंस में हम थोड़ा दबाव पैदा करके ये मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हुकूमत को ये अच्छी तरीके से वाकिफ़ है, हुकूमत साबिक़ा इलेक्शन में आए वक्त में बगैर मुसलमानों के हम नहीं जीत सकते बोल के सोच के समझ के माइनॉरिटी डिक्लेरेशन को डिक्लेयर किया गया था, और अर्बन एरियाज में 18% से लेके 26% जो मुसलमान है सारे तेलंगाना इलाके के, जो अर्बन एरियाज के 40 सीट ऐसे है बगैर मुसलमान के, वो 40 सीट वो लोग जीत ही नहीं सकते। तो वैसे अर्बन एरिया में 18 to 26% जो वोट्स थे वो वोट्स हम एक तरफा डाल के आज ये हुकूमत को, कांग्रेस पार्टी की हुकूमत को हुकूमत में लाए। हुकूमत में लाने के बाद में वो एहसास से और हमारे मसाइल को भी हल करना उनकी ज़िम्मेदारी थी, लेकिन हल नहीं हुआ, तो हम एक रिप्रेजेंटेशन की शक्ल में उन पे थोड़ा सा दबाव ला के हमारे मसाइल हल करने के लिए और ये जलसा मनाया जा रहा है। उसके साथ साथ भाईचारगी और अमन का माहौल बनाने के लिए जो नफ़रत का माहौल तेज़ी से फैला जा रहे हैं, एक भाईचारगी अमन का माहौल पैदा करना असल मकसद है। उसके साथ साथ और SIR का जो हमारी शहरियत को छीनने की जो साजिश चल रही है, ये शहरियत को भी जो किस तरीके से हम बचा सकते, SIR का मुकाबला किस तरीके से कर सकते, ये हमारे उलमा हजरात, हमारे कायदीन, सियासी समाजी कायदीन हमको गाइड करते बोल के वो उस मकसद से हम ये जलसा मनाया जा रहा है। लिहाजा ये जलसे में सारे अवाम, कम्बाइंड डिस्ट्रिक्ट के मुत्तहिदा ज़िले के सारी अवाम उन्नास, पूरे बिना मज़हब व मिलत तमाम लोग शिरकत करके इस जलसे को कामयाब करने की हम अपील करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहसिन खान, सदर कुल जमाती मुस्लिम कायदीन राब्ता कमेटी और BRS सीनियर लीडर। कल जो महबूब नगर शहर में शालीमार गार्डन में 24 तारीख को बाद मगरिब जो हमारी आवाज़ के नाम से एक जलसा रखा गया है, मुस्लिम राइट्स जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से रखा गया है ये जलसा। जैसा कि सबको इल्म हुआ है, मालूमात हुए हैं, पूरा मुत्तहिदा ज़िला से लोग आ रहे हैं इसमें। ये मेरी आपकी आवाज़ नहीं, सारी कौम की आवाज़ है। सारी कौम को जुड़ना है इससे, बच्चा बूढ़ा ख़वातीन सबको जुड़ना है, क्योंकि हमारे जो मुतालबात है जायज़ मुतालबात है। कोई किसी पार्टी से हम नए मुतालबात नहीं कर रहे हैं। जो उन्होंने वादा किया था उस पर अमल करने के लिए हम ये जो है सो जलसा कर रहे हैं। लिहाजा मैं तमाम लोगों से अपने पार्टियों को बालाए ताख रखकर, अपने मसलकों को बालाए ताख रखकर इस
जलसे में जुड़ने के लिए अपील कर रहा हूं, क्योंकि वक्त का तकाजा है। आज सबसे ज्यादा दूसरी कौमों से भी ज्यादा मुसलमान मसाइल से घिरा हुआ है। मुसलमानों के साथ वादा किया जाता है लेकिन उसको पूरा नहीं करते हैं, और साथ ही साथ इस जलसे से हम SIR के खिलाफ, यानी SIR को रद्द करने की हुकूमत से डिमांड कर रहे हैं। और इस जलसे से ये जो मॉब लिंचिंग, यहाँ वहां मारना, मुसलमानों पे हमले करना, उसके खिलाफ भी हमारे जो है ये आवाज है। लिहाजा हम सबको मिलकर आवाज उठाना है। लिहाजा इस जलसे से जुड़िए और अपना वक्त, कीमती वक्त निकालिए। 3 घंटे जलसा रहेगा मगरिब के बाद से। इसमें हिंदुस्तान के मशहूर बड़े बड़े जो मुसलमानों के रहनुमा हैं वो मुखर्रिर आ रहे हैं, जैसे CM इब्राहिम साहब हैं, वो तारुफ के मोहताज नहीं है, वो हिंदुस्तानी हुकूमत में साबिक़ा वजीर रह चुके हैं। और तालिब रहमानी साहब मौलाना जो है वो कलकत्ता से आ रहे हैं, वो भी मुसलमानों के मसाइल पे आवाज़ उठाते रहते हैं। लिहाजा मैं शहर नहीं बल्कि मुत्तहिदा महबूबनगर की तमाम आवाम से और सेकुलर हिंदू भाइयों से अदबन गुजारिश करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस जलसे को कामयाब करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं। और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।